So higher organisms, when you take higher organisms, they reproduce by sexual methods, and after the fertilization, gametes, after the fertilization, zygote is formed, and zygote is developed into embryo, and embryo may develop to male or female. That process we are saying it as what? Sex determination. So now how is sex determined, whether the embryo is becoming male or female? How is determined? That only we are going to learn now. Okay, so now clearly listen this. Now sex is determined in 3 stages. Okay, so sex is determined in how many stages? 3 stages. First method is progamic. Progamic. What is the meaning of progamic? So sex is determined. Sex is determined before fertilization. I am writing F for fertilization. So what is progamic sex determination? In progamic sex determination, sex is determined before fertilization. Okay, so this is happening in case of drones. So drones are the honeybees. Okay, this is happening in case of the drones. You remember the examples. Another one is syngamic sex determination. So what is syngamic sex determination? Sex is determined at the time of fertilization. At the time of fertilization. So in mammals and in human beings and in Drosophila, sex is determined at the time of fertilization. So when sex is determined at the time of fertilization, we say it as syngamic sex determination. So it is common in human beings and also in Drosophila, very famous insect, Drosophila. So last is epigamic sex determination. Epigamic. So what is the meaning of epigamic? So sex is determined after fertilization. Okay. So in progamic, sex is determined before fertilization. In syngamic, sex is determined at the time of fertilization. And in epigamic, sex is determined after the fertilization. So this is epigamic method. So this epigamic sex determination you can see in female honeybee. Okay. So this is the 3 methods of sex determination: progamic, syngamic, and epigamic, right? So this information you have to know. Now when you come to the methods of sex determination, generally there are 3 methods which determine the sex. One is environmental sex determination. Second one is non-chromosomal sex determination. Third one is chromosomal sex determination. So now, what is the meaning of environmental sex determination means? So environment will decide whether the organism will be male or female. So environmental factors like temperature, all these factors will decide whether the organism will develop into male or female. That we say it as environmental sex determination. Then second one is non-chromosomal sex determination. And third one, which is most popular, is chromosomal method of sex determination. So chromosomal method of sex determination says that chromosomes play a role in the determination of the sex, whether the male, whether the female. So chromosomal method of sex determination is most famous and most popular, and it is a characteristic feature of higher animals. So when you go for higher animals like mammals and human beings, you can see chromosomal method of sex determination. Environmental factors do not play any role in determination of sex in case of human beings. Yes, do you accept it? So if you take a human example, do environment play a role in our sex determination? If a pregnant woman is there, if she is moving to hot areas, whether she will give rise to males, or if she is moving to cold areas, she is giving rise to female. ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता है. तो environment जो है सेक्स डिटर्मिनेशन पे कुछ ऑर्गेनिज्म पे ही अफेक्ट करता है, बट ह्यूमन बींग्स में जो सेक्स डिटरमाइन होता है क्रोमोसोम्स के वजह से होता है. वो क्या है, मतलब हाउ द क्रोमोसोम्स डिसाइड द सेक्स, लेट अस लर्न इट डिटेलली. दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू? Yes, sir. Right. So now let us go for chromosomal method of sex determination. So
Let us see what is the story behind it. Now, you remember the three methods of sex determination. SD I am writing for sex determination, SD. Okay. So sex determination I am writing SD. There are three methods of sex determination which you can see in different animals and plants. One is environmental sex determination, non-chromosomal sex determination, chromosomal sex determination. So these are the three methods which are elucidated, which we have to learn. Okay, according to our micro schedule, first we will learn this, then we will move to this, then we will move to this. Okay, so chromosomal sex determination, first we will learn that. So now speaking about this chromosomal sex determination, first you have to know, हमें पहले ये समझना है कि क्रोमोसोम क्या है. ओके, सो यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस में एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन. ये क्रोमैटिन जो है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड होने लगता है, उस टाइम पे क्रोमैटिन जो है क्रोमोसोम बनता है. ओके, सो क्रोमोसोम का लिटरल मीनिंग है क्रोमा मींस कलर, जोमा मींस बॉडी. तो हम क्रोमोसोम को एक कलर्ड बॉडी बोल सकते हैं, राइट. सो सेल में, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पहले तो धागे जैसा स्ट्रक्चर है क्रोमैटिन. क्रोमैटिन जो है सेल डिवाइड होने के टाइम पे क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, राइट. तो ये क्रोमोसोम्स जो है सेक्स डिटर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो क्रोमोसोम्स की वजह से सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है हम उसको अभी जानेंगे. सो now some fundamental points you remember before this. Now there was a scientist known as Henking. Henking discovered X body in 50% sperms of firefly. You know very well what is firefly. Okay, so now Henking साइंटिस्ट ने एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था फायरफ्लाई के स्पर्म्स में. ओके, तो उसने एक्स क्रोमोसोम का नाम नहीं दिया था, उसने बोला एक्स बॉडी. ओके, यू रिमेंबर दिस दैट Henking डिस्कवर्ड एक्स बॉडी. एक्चुअली इट वाज एक्स क्रोमोसोम ओनली, बट उसने नाम क्या दिया था, एक्स बॉडी. ओके, सो Henking डिस्कवर्ड एक्स बॉडी इन द स्पर्म्स ऑफ फायरफ्लाई. सो फायरफ्लाई के स्पर्म्स में उसने एक्स बॉडीज को डिस्कवर किया Henking ने. उसके साथ साथ उसका जो और एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्टीवंस. स्टीवंस ने वाई बॉडी को डिस्कवर किया था, राइट. वाई बॉडी का मतलब क्या हुआ, वाई क्रोमोसोम, बट उन्होंने वाई बॉडी बोला है, क्रोमोसोम का नाम उन्होंने नहीं दिया है. ठीक है, तो Henking ने एक्स बॉडी को डिस्कवर किया, स्टीवंस ने वाई बॉडी को डिस्कवर किया. और दोनों साइंटिस्ट थे विल्सन एंड स्टीवंस. नेम्ड देम एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स. विल्सन और स्टीवंस साइंटिस्ट ने ये एक्स बॉडी को और वाई बॉडी को एक्स और वाई क्रोमोसोम का नाम दिया, और साथ ही साथ उन्होंने एक थियरी को प्रपोज किया जिसका नाम है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. क्रोमोसोमल थियरी ऑफ एसडी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. बात मेरी समझ गए. तो पहले Henking साइंटिस्ट ने एक्स बॉडी को डिस्कवर किया और स्टीवन साइंटिस्ट ने वाई बॉडी को डिस्कवर किया. उन्होंने एक्चुअली ये एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम थे, बट उन्होंने नाम क्या दिया, एक्स बॉडी वाई बॉडी. फिर उसके बाद विल्सन और स्टीवंस साइंटिस्ट ने ये एक्स बॉडीज को और वाई बॉडीज को नाम दे दिया एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, और साथ ही साथ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को उन्होंने प्रपोज किया. तो इनके क्रोमोसोमल थियरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन के अनुसार उनका क्या सोचना है, उनका क्या कहना है. तो क्रोमोसोमल सेक्स थियरी कहता है कि सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is determined by chromosomes, not by environment, not by some other factors, but
किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेक्स जो है क्रोमोसोम्स के ऊपर ही निर्भर होता है, क्रोमोसोम्स ही सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स जो है सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि क्रोमोसोमल थियरी क्या है, उसके क्या पॉइंट्स है। लेट अस सी नाउ। यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है आपके? यस सर। राइट। तो अभी देखेंगे आगे की क्रोमोसोमल थियरी में क्या बोल रहा है। तो अभी हम क्रोमोसोमल थियरी को जानने के लिए हम सबसे पहले ह्यूमंस को ही देखेंगे, क्योंकि ह्यूमंस क्रोमोसोम्स को देखने से वी विल गेट इजी आइडिया। तो कभी भी कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है, ये याद रखो, इंफॉर्मेशन मॉड्यूल में नहीं दिया है। कोई भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने सेट्स? 2 सेट्स। ओके। सुनो, एक सेट में सेट्स अलग है, पेयर्स अलग है। पेयर मतलब जोड़ी, 2 ही रहेंगे। सेट मतलब एक सेट में 2 रह सकते, 3 रह सकते, कितने भी रह सकते। सो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में जो है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को कहा जाता है ऑटोसोम, ओके, और दूसरे सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को कहा जाता है अल्लोसोम। क्लियर? ऑटोसोम, अल्लोसोम। ये अल्लोसोम्स को कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स, CHR। क्लियर? तो किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। उस 2 सेट में एक सेट है ऑटोसोम, दूसरा सेट है अल्लोसोम। अल्लोसोम इज आल्सो कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। अल्लोसोम इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? सेक्स क्रोमोसोम। ये अल्लोसोम का सिर्फ और सिर्फ काम है SD, सेक्स डिटरमिनेशन। अल्लोसोम्स का काम क्या है? सिर्फ सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, वेदर मेल वेदर फीमेल। ऑटोसोम्स का काम क्या है? कंट्रोल्स वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। क्लियर? सो अल्लोसोम्स क्या करते हैं? अल्लोसोम्स कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ बॉडी के जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, बालों का बढ़ना, नाखून का बढ़ना, ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है अपने ऑटोसोम्स कंट्रोल करते हैं। और अल्लोसोम का एक ही काम है, सेक्स को डिटरमाइन करना। सेक्स को डिटरमाइन करना ही अल्लोसोम्स का काम है। क्लियर? सो हमें एक पॉइंट क्लियर हुआ कि ह्यूमन बॉडी हो या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसके क्रोमोसोम्स को हम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ऑटोसोम, अल्लोसोम। ऑटोसोम्स, अल्लोसोम्स, प्लूरल, राइट? तो अभी हम देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन बीइंग्स में कितने क्रोमोसोम्स है, कितने ऑटोसोम्स है, कितने अल्लोसोम्स है। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बीच में आप बोलते रहो, कंफ्यूजन नहीं है तो बस सुनते रहो। तो अब ह्यूमन बीइंग्स को जब हम देखते हैं, ह्यूमंस अपने जो है डिप्लॉयड है, मतलब इनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, ऑटोसोम्स भी है और अल्लोसोम्स भी है। ह्यूमन में कुल मिला के कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। याद रखो नंबर 43। 46 का मतलब होता है 23 पेयर्स। क्लियर? सो ह्यूमन बीइंग्स में कुल मिला के 46 क्रोमोसोम्स है। 46 मतलब 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। 23 into 2 46, राइट? सो मेरे बॉडी में, आपके बॉडी में या किसी के बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस 46 क्रोमोसोम्स में, ठीक है, इस 46 क्रोमोसोम्स में 44 जो है ऑटोसोम्स है। क्लियर? 44 जो है ऑटोसोम्स है, और या तो XX या तो XY अल्लोसोम्स। क्लियर? मतलब कहने का मतलब यह है, किसी भी ह्यूमन बॉडी में 44 ऑटोसोम्स है, उसके साथ साथ या तो XX क्रोमोसोम्स रहेंगे या तो XY क्रोमोसोम रहेंगे। अगर कॉम्बिनेशन ऐसा है कि 44 ऑटोसोम्स और XX अल्लोसोम, तो इस ऑर्गेनिज्म होगा फीमेल। क्लियर? तो फीमेल में क्या है? 44 ऑटोसोम्स है और XX 2X क्रोमोसोम्स है, राइट? अगर कॉम्बिनेशन मान लो ऐसा है तो ये ऑर्गेनिज्म होगा मेल, ये ऑर्गेनिज्म होगा मेल। क्लियर? सो मेल के सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन? मेल के सेक्स क्रोमोसोम कौन से हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन? XY।
XY, very good. So XY are the male sex chromosomes, XX are the female sex chromosomes. तो ये XX और XY को छोड़ के जितने भी 44 ऑटोसोम्स हैं उन they are same in males and females, right? So अब अगर क्वेश्चन ऐसा आया, फॉर एग्जांपल डैश क्रोमोसोम डिटरमाइंस मेलनेस, अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, वाई क्रोमोसोम, वेरी गुड। क्योंकि एक्स एक्स तो फीमेल कैरेक्टर्स को देते हैं और वाई क्रोमोसोम होने की वजह से ही मेलनेस आता है, तो वाई क्रोमोसोम जो है मेलनेस को डिटरमाइन करता है, राइट। तो यहाँ तक तो अपने पॉइंट्स पूरे क्लियर हैं। चलो अभी आगे देखेंगे, ये वाई क्रोमोसोम हकीकत में मेलनेस को क्यों डिटरमाइन करता है, वाई क्रोमोसोम की एक्चुअली क्या स्पेशलिटी है, देखेंगे अभी। ये यहाँ तक क्लियर है ना पूरा? राइट। अभी हम देखेंगे कि भाई कि ये वाई क्रोमोसोम के वजह से मेलनेस क्यों आ रहा है। तो इसका रीजन ये है, ये जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम हैज SRY। ओके, वाई क्रोमोसोम पे क्या होता है? ओके, SRY। ये SRY का फुल फॉर्म होता है सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर। क्लियर? तो ये वाई क्रोमोसोम के ऊपर होता है SRY रीजन। ये SRY रीजन का फुल फॉर्म होता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन। तो ये सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन जो है, SRY जो है, एक प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूसेस TDF। ठीक है, तो ये TDF का फुल फॉर्म हो गया है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, ओके। तो ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या करता है? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो है टेस्टिस को डेवलप करता है। टेस्टिस डेवलप्स टेस्टिस इन एम्ब्रियो। Okay, so it is determining the, suppose this is our Y chromosome, this Y chromosome is having some region which is known as SRY. This SRY will produce TDF, this TDF will produce testis, so that is the main region of the Y chromosome। ओके, Y क्रोमोसोम में TDF फैक्टर होने के वजह से या SRY रीजन होने के वजह से ही टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो में। क्लियर? तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मॉड्यूल में नहीं दिया है बट आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वन। अब ये क्रोमोसोमल मेथड ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन जो है, लेट अस सी। नाउ फॉर एग्जांपल, अब ह्यूमंस की हम बात करेंगे, तो ह्यूमंस के अगर मेल्स हैं तो मेल्स में एक्स और वाई क्रोमोसोम्स है, ये तो अपना क्लियर है। और मेल्स जो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेगा, ओके, मेल जो स्पर्म्स को प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें 50% स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होगा और 50% स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम होगा। ठीक है, so male produces the sperms with 50% of X chromosomes and 50% of Y chromosomes. Similarly, females produces all X with X chromosome only. Yes, is it true? Is it true or false? So, in case of humans, females are producing the ova or the eggs which contain only X chromosome. Why? Because females' sex chromosomes are only X chromosomes, but males produce the sperms with 50% of X chromosomes and 50% of Y chromosomes, right? So now let us see one question. In humans who are
heterogametic. MF. Who are heterogametic? Males or females? Female. Female. Okay, Palak has given correct answer. Any further answers? Male. Males are heterogametic because male जो है दो प्रकार के गैमेट्स बना रहा है. एक गैमेट एक स्पर्म जिसमें X क्रोमोसोम है और एक गैमेट जिसमें Y क्रोमोसोम है. ओके, सो दिस इज द थिंग. वेरी गुड. Now let us see different types of sex determination chromosome method के अनुसार what are the different types of sex determination which we are having. So now we have different types of sex determination in the chromosomal method. One is XX-XO type. One is what? XX and XO type. So now in this XX and XO type, this is female, this is male. So female is homogametic X and X, and male is X and O. Okay, understood? No? So you can see this in case of roundworms. You can see this XX and XY type of sex determination in roundworms. Some insects like true bugs. You remember the examples of the insects? True bugs, cockroaches and grasshoppers. Grasshoppers and cockroaches. Okay, you have to remember the examples. You have to remember the examples. Sir, Any problem? sir, the board is blurred. 1 minute. Now, Blur only. wait for 2-3 minutes. It will be adjusted. Now only power came, so Wi-Fi connect होने में थोड़ा time लगेगा. Just wait. My voice is audible clearly? Yes. Okay. First listen then. So when the board becomes clear, you signal me. So now, first method which we are going to discuss is XX and XO type of sex determination. So this XX and XO type of sex determination you can see in roundworms, true bugs, grasshoppers, and cockroaches. Okay. So in this method, two X chromosomes are present in female. Only one X chromosome is present in the male. It means in XX and XO type of sex determination, females are homogametic. They are producing X with only X chromosome. But when you take the males produce 50% of the sperms with X chromosome and 50% of the sperms with no X chromosome. It is actually XO means no, there is no X chromosome. Okay. होमोगैमेटिक. ओके, अभी हुआ बोर्ड एडजस्ट हुआ क्या? Yes, sir. राइट. Yes, sir. नाउ एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं. इस एग्जांपल के अनुसार ही अपने को दूसरे जो भी है करना है. तो मान लो ये मेल है, ये फीमेल है. ओके, सो मेल में ऑटोसोमल सेट है 1-2 और XO क्रोमोसोम से सेक्स क्रोमोसोम्स, और ये फीमेल है, 2 ऑटोसोमल सेट्स है और डबल X है. ठीक. अब जब इसके गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स कैसे बनेंगे इसके? यू सी
A plus X, A plus 0, A plus X, and A plus X. These are the gametes. I'm encircling. Okay, these are the gametes. Okay, now if you see, male contain the sperms containing X chromosome and 50% of the sperms do not contain X chromosome. All are X and X. Now you cross here. Punnett square also you can use, but I am using like this way. Now how you will get the combinations? So you observe here, you will get A plus XX. Now A plus XX, A plus X0, A plus X0. Right? Like this way you have got. Is it correct? Yes. Is it correct? Yes, sir. Right. So how many males, how many females you have got? 2 male, 2 female. How many males, how many females you have got? 2 males, 2 females. Very good. You have got 2 males and 2 females. So this is the XX and XO type of sex determination. XX and XO type of sex determination you can see in roundworms, you can see in true bugs, you can see in grasshoppers, you can see in cockroaches. Now let us move for another method of sex determination. Board is very clear to you all. Yes, sir. Next one is ZWZZ method. ZWZZ type. Okay, so this you can see in birds, fishes, and reptiles. This you can see in birds, fishes, and reptiles. Now here females, when you go, if you see the females, no, females will be AA plus ZW, and males will be AA plus ZZ. It means that males are homogametic, females are heterogametic. So in ZWZZ type of sexual determination, who are homogametic, males are homogametic and females are heterogametic. So same method, crossing कैसे करना आपको पता है. Okay. Now the next another method is ZOZZ type. This you can see in butterflies and in a moth known as Fumia. Fumia moth. Here females are, I'm writing females, how the females will be AA plus ZO and males are AA plus ZZ. Like this. Understood this? Yes, sir. This you understood? Yes, sir. Yes, sir. In which sex determination males are homogametic? ZWZZ. Above abhi ZWZZ or ZOZZ males are homogametic only. Yes or no? Any confusion? No, sir. किसी को कोई confusion है? No, sir. पक्का?
Okay. Now the last method is XX XY type. XX XY type. So this you can see in human beings. You can see in Drosophila. Right. So in case of males, AA plus XY. In case of females, AA plus XX. Clear? So males are heterogametic, females are homogametic. So in our human beings, XX and XY type of sex determination will be going to take place. Okay. So these are the different types of sex determination which you can see. Now coming to the synapses of different methods of chromosomal sex determination, you take quickly screenshot. Now you have XX XO type, then you have XX XY type. Okay. Again you have Z ZW ZZ type. Okay. Lastly you have ZO ZZ type. These are the different methods which are given in our module as a sex determination methods. Now where you can see this you can see in roundworms, grasshoppers, cockroaches. Right? What is the speciality? When you observe the speciality, who are heterogametic here, who are homogametic, you say now. Females are homogametic. This is the speciality. Females are homogametic. Now the next method you can see in case of human beings and Drosophila. Humans, Drosophila, who are heterogametic. Males are heterogametic. Right? Now when you go for ZW ZZ type, where you can see this method, ZW ZZ type, in which animals you are able to see this method of sex determination? In birds, fishes and reptiles. Birds, fishes, reptiles. What is the speciality here? What is the speciality? Who are heterogametic here? Female. Females Male. are Female. heterogametic. So means heterogametic. Last one, ZO ZZ type. Where you are going to see this ZO ZZ type? In butterflies and Fumia. Fumia more. What is the speciality here? Who are heterogametic here? Females. Females. Sorry. Females are males. Yeah, females. Females. These are the different types of chromosomal methods of sex determination. This is most striking. I hope this is crystal clear to you. Any confusion? No, sir. ले लिया screenshot. Yes. Right. Now last important one, sex determination in honeybees. ये थोड़ा important है, ये थोड़ा मजेदार भी है. Sex determination in honeybees. Now let us see what is actually the sex determination in honeybees.
मॉड्यूल में यही दिया है, बट उसने थोड़ा उसके अंदाज से दिया है, मैं आपको और थोड़ा इजी फॉर्म में दे दिया। अंडरस्टूड? नाउ सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी, SD in honeybees. Now, generally in honeybees, sex is determined by haplodiploid mechanism. Okay, इन honeybees सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है? सेक्स जो है haplodiploid मैकेनिज्म से डिटरमाइन होता है, जिसे haplodiploidy भी कहा जाता है। ओके, तो honeybees में सेक्स जो है haplodiploid मैकेनिज्म से डिटरमाइन होता है, जिसे haplodiploidy भी कहा जाता है। और ये haplodiploidy मैकेनिज्म से नॉट ओनली इन honeybees बट कुछ इंसेक्ट्स है, वैस्प और एंट्स, इनमें भी सेक्स डिटरमाइन होता है haplodiploid मैकेनिज्म से। ओके, honeybees, wasp एंड एंट्स, इनमें भी सेक्स डिटरमाइन होता है haplodiploid मैकेनिज्म से। ओके, अब ये haplodiploid मैकेनिज्म क्या है? Okay, now it is the type of sex determination in which male is applied and female is diploid. Clear? ये ऐसा सेक्स डिटरमिनेशन है जिसमें मेल हप्लॉइड होगा और फीमेल डिप्लॉइड होगा। मेल हप्लॉइड और फीमेल डिप्लॉइड होने के वजह से ही इसे कहा जाता है हप्लोडिप्लॉइडी, HD। पॉइंट इज क्लियर? ये पॉइंट आपका क्लियर है? ओके, सो ये हनीबीज में जो है सेक्स जो है हप्लोडिप्लॉइड मेथड से डिटरमाइन होता है। हप्लोडिप्लॉइड मेथड वो मेथड है जिसमें क्या होगा? जिसमें मेल्स आर हप्लॉइड एंड फीमेल्स आर डिप्लॉइड। सो मेल्स आर हप्लॉइड एंड फीमेल्स आर डिप्लॉइड, सो वी से इट एज हप्लोडिप्लॉइड मैकेनिज्म। अब ये हनीबीज को पहले देखना है कि हनीबीज का जो कॉलोनी होता है, यू माइट हैव सीन हनीबीज हाइव्स। ओके, आप लोगों ने हनीबीज को देखा होगा, वो हमेशा कॉलोनीज में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, देखा होगा। तो ये हनीबीज के जो कॉलोनी में है, थ्री टाइप्स ऑफ हनीबीज होते हैं। एक का नाम है रानी, क्वीन बी, ठीक है। दूसरा है वर्कर, काम करने वाला नौकर, वर्कर बी। और तीसरा है ड्रोन्स। ओके, सो हनीबी के कॉलोनी में रानी है, उसके नौकर है और उसके चमचे हैं, ड्रोन्स। अंडरस्टैंड? याद रखना है। तो हनीबी का जो कॉलोनी है उसमें रानी है, रानी के नौकर है, नौकर के भी चमचे लोग हैं, ड्रोन्स, ठीक है। तो अभी नाम से ही हमें मालूम हो रहा है कि क्वीन बी मेल है या फीमेल है? फीमेल। फीमेल, वेरी गुड। सो क्वीन बी जो है फीमेल है। तो फीमेल जब रानी होती है तो उसके जो मतलब उसका जो क्या बोलते हैं उसको, रूलिंग सिस्टम होता है, तो वो ज्यादातर उसके जो वर्कर बीस है, मेल्स रहेंगे या फीमेल्स रहेंगे? गेस करो। फीमेल। फीमेल। फीमेल्स ही रहेंगे, वेरी गुड। सो फीमेल्स ही रहेंगे क्योंकि क्वीन भी है, तो सीधी बात है, तो जब क्वीन रहेगी तो पूरे महिला समाज को ही भरेगी वो, तो फीमेल्स ही रहेंगे। ओके, अब ये ड्रोन्स क्या है? ड्रोन्स फीमेल्स है या मेल्स है? मेल। या सो ये जो ड्रोन्स होते हैं ये मेल्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये हनीबीज का जो राज है, हनीबीज की जो कॉलोनी है, उसमें पूरा महिला समाज ही है। क्वीन है, वर्कर है, क्वीन है, वर्कर है, ड्रोन्स तो कुछ काम के नहीं है,
सिर्फ ड्रोन्स का काम होता है फर्टिलाइजेशन टू कपुलेट विद द फीमेल फ्लाई। ओके, तो कभी कभी अगर ड्रोन्स की क्वांटिटी, मतलब ड्रोन्स कुछ काम के नहीं है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन के सिवा वो कोई काम नहीं करते हैं कॉलोनी में, इसीलिए क्वीन बीज से मेटिंग करना ही ड्रोन्स का काम होता है। और जैसे काम हो जाता है तो ड्रोन्स को मार दिया जाता है, कि ड्रोन्स अगर बहुत बढ़ेंगे कॉलोनी में तो हनी, उनका फूड मटेरियल इनको देना पड़ेगा। इसीलिए हनी बीज की कॉलोनी संपूर्ण महिला समाज है, उसमें क्वीन बीज है और वर्कर बीज है। ड्रोन्स का काम खत्म होते ही उन्हें खत्म किया जाता है। ओके, तो क्वीन बी, तो क्वीन बी जो है फीमेल है, डिप्लॉयड है, याद रखो फीमेल है और डिप्लॉयड भी है। इसका काम क्या है? इसका काम है लेइंग एग्स, सिर्फ अंडे देना। इसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ अंडों को देना ही काम है। और नो वर्कर बीज है, वर्कर बीज जो है फीमेल्स ही है और डिप्लॉयड है, फीमेल्स है और डिप्लॉयड है। तो ये जो है हनी को, नेक्टर को फ्लावर से कलेक्ट करते हैं। ये इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल फीमेल्स है, ये अंडे नहीं दे सकते, इसीलिए इन्हें सिर्फ काम करना होता है, इसलिए उसका नाम भी वर्कर है। ड्रोन जो है अप्लाइड होते हैं और ये जो है फर्टाइल होते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये जो है मेल्स है। क्लियर? सो हनी बी के कॉलोनी में इतने प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, क्वीन बी, वर्कर बी, ड्रोन्स। क्वीन बी अंडों को देता है, उसका काम सिर्फ अंडे देना ही है, वो डिप्लॉयड है और फीमेल। वर्कर बी का काम हर एक फूल पे जाके नेक्टर को कलेक्ट करना है, उनका इतना ही काम है। और वो इनफर्टाइल होते हैं, वो अंडे नहीं दे सकते हैं। ड्रोन्स फर्टाइल होते हैं, उनका कुछ काम नहीं है, सिर्फ रिप्रोडक्शन का ही उनका काम है। ये है हनी बीज की कॉलोनी। ठीक है, तो हनी बीज में सेक्स डिटर्मिनेशन को जानने से पहले हमें ये थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट है कि हनी बीज के कॉलोनी में क्या क्या है, कैसे है। तो हमें एक बात तो पता लग गया कि हनी बी के कॉलोनी में जो फीमेल्स है वो पूरे डिप्लॉयड है और मेल जो है अप्लाइड है। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड। यहां तक अपने पूरे पॉइंट्स क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? एवरीथिंग इज क्लियर? Yes. राइट। नो अभी हम देखेंगे इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो अभी ध्यान से देखो, मैं उसका टेबल मतलब फ्लो चार्ट बताऊंगा कि इनमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो हमने ऑलरेडी एक पॉइंट पढ़ चुके हैं कि जो फीमेल होता है वो डिप्लॉयड होता है और मेल जो होता है वो अप्लाइड होता है। ओके, अब मैं एक तरफ लिख रहा हूँ फीमेल बी, फीमेल बी, फीमेल मधुमक्खी वर्सेस मेल मधुमक्खी, मेल बी, राइट? So this is female bee, this is male bee. Excuse me, sir. हाँ, Sir, how can we classify king, drone, and workers? 1 minute. Now you ask, beta. How can we classify king, drone, and workers? Who is asking this question? Can I know the name? What happened? She left the class. She is other student. हाँ सर, कोई बाहर Yes, her name was Sonia. Yeah, that only. That is the reason. मैं tone, I identify the tones. No, अपने students को तो मैं पहचानता हूँ. So now she asked the question. Now I am answering to you all. So now what is going to happen means, in the honeybee colony, the insects which are eating the royal jelly. रॉयल जेली मतलब हनी बी के कॉलोनी में जो इंसेक्ट रॉयल जेली बोल के एक बनता है, तो जो भी इंसेक्ट, जो भी बी ये रॉयल जेली को खाएगा वो क्वीन बनेगा। ओके, एंड दोस हु ईट
ब्रेड ऑफ द हनीकॉम, हनीकॉम में कचरा भी बनता है, जो उसको खाते हैं वो जनरली वो वर्कर्स हो जाते हैं। ओके, सो द इंसेक्ट्स विच फीड ऑन रॉयल जेली will become will become queen, and insects which do not feed on royal jelly, they become workers. It is one of the assumption. Okay, she asked the question, you got the answer? Yes, Right. sir. Okay. सर इनके साइज भी मैटर करते होंगे ना? हाँ इनके साइज भी डिफरेंट होते होंगे ना? हाँ, एक्चुअली अब इनमें जो है, ये जो फीमेल और मेल सेक्स तो अभी मैं बताऊंगा कि कैसे डिटरमाइन होता है। और फीमेल जो बीज बनते हैं वो वर्कर्स क्यों बनते हैं और क्वीन क्यों बनते हैं, उसका एक रीजन एक ही है कि जो भी फीमेल बी रॉयल जेली जो बनता है हनी बी के कॉलोनी में, उसको अगर खा लेता है तो शी विल बी बिकमिंग क्वीन। तो रॉयल जेली खाने के बाद बचा कुचा कचरा जो भी रहा दूसरे मधुमक्खी खा लेते हैं, वो फीमेल जो है वर्कर्स बन जाते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी नाउ फीमेल बी एंड मेल बीस आर देयर। सो नाउ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि फीमेल बी जो है डिप्लॉयड होता है, मेल बी जो है अप्लाइड होता है। तो फीमेल बीस में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, आई एम राइटिंग द नंबर हियर 32, और मेल बी में 16 क्रोमोसोम्स होते हैं, आई एम राइटिंग द नंबर हियर। सो दिस इज 2n, दिस इज n। यहां तक अपने पॉइंट क्लियर है? Yes, ओके, sir. राइट। तो अभी ये फीमेल बी में मियोसिस होता है, क्योंकि ये डिप्लॉयड है तो इसमें मियोसिस होकर दो गैमेट्स इसके बनते हैं, दो एक्सेल्स इसके बनते हैं। एक एक्सेल में 16 क्रोमोसोम्स रहेंगे और दूसरे एक्सेल में भी 16 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। ये उसका ओवा हो गया, ये उसका ओवा हो गया। ओवा का मतलब है एक्सेल एक्सेल। अब मेल भी हप्लाइड है तो इसमें मियोसिस नहीं होता है, मियोसिस के प्लेस पे माइटोसिस होता है। ठीक है, तो इसमें माइटोसिस होने की वजह से इसके जो स्पर्म्स बनेंगे इसमें 16 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे, क्योंकि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है। तो ऐसा अपना प्रोफार्मा है। तो फीमेल बी में मियोसिस हुआ तो दो ओवम बने 16 एंड 16। मेल बी में माइटोसिस हुआ, मियोसिस नहीं हुआ, क्योंकि मेल बी हप्लाइड है और हप्लाइड सेल्स में कभी भी मियोसिस नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। और माइटोसिस होने की वजह से जो स्पर्म्स बनेंगे वो 16 वाले ही बनेंगे, 16 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। ओके, अब क्या हो रहा है, मान लो ये ओवा जो है ये स्पर्म से मैच हुआ, तो नंबर कितना है बताओ? नंबर कितना है? इजी है, बताओ ना। एब्सोल्युटली करेक्ट। 32 32 means she is male or female? Female. Female. Now listen here. Now when eggs are fertilized by the sperms, then female individuals are formed. When eggs are fertilized by sperms, female individuals are formed. हनी बी के जब eggs fertilize होते हैं, ओके, वेरी गुड पलक। सो हनी बी के एग्स जब फर्टिलाइज होते हैं तो फीमेल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है होके रहेगा। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, हनी बीज का हनी बीज के एग्स जब फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइज का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो हनी बीज के एग्स जब फर्टिलाइज होते हैं तो फीमेल इंडिविजुअल को बनाता है, और हनी बीज के एग्स अगर फर्टिलाइज नहीं होते हैं, हनी बीज के एग्स अगर फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग जो है 16 बनाएगा। ये 16 साल वाला कवारा लड़का कौन है? मेल है। क्लियर? अंडरस्टूड द पॉइंट हियर? ये लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. अब बताओ, अब आप बताओ कि जब अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफस्प्रिंग को बनाता है, जब अनफर्टिलाइज्ड एग
अगर बच्चों को बनाता है, ऑफस्प्रिंग को बनाता है, तो हम उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? सोचो, हमने ऑलरेडी बॉटनी के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में पढ़े। सीडलेस फ्रूट्स आर फॉर्म्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस। absolutely correct, absolutely correct। तो इसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। If question is asked, what is parthenogenesis? What is parthenogenesis? बताओ। Without fertilization. Very good. Some animals may produce eggs that develop into offspring without fertilization, right? Some animals will produce eggs that develop into offspring without fertilization. Absolutely correct, Palak. Very good, very good, very good. Keep it up. So some animals may produce eggs that develop into offspring without fertilization, right? So यहाँ पे देखो, honey bee is an animal which is producing an egg. It is producing a male individual without fertilization. So we say it as parthenogenesis. ये parthenogenesis insects में होता है, insects में खासकर honey bee में होता है, और रिप्टाइल्स में होता है, जैसे मगरमच्छ है, कुछ फिशेस में भी होता है। ये स्क्रीनशॉट ले लो पार्थिनोजेनेसिस का डेफिनेशन। ले लिए? Yes, sir. वेरी गुड। सो हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस होने के वजह से 16 साल का कवारा लड़का, मेल इंडिविजुअल, मेल हनी बी का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फीमेल्स बनेंगे, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेल्स बनेंगे। ये डाटा अपना क्लियर है? डाटा अपना क्लियर है? Yes, sir. ओके। नो, यहाँ पे एक मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ। डाटा को आप ऐसे ही देखो, जो चार्ट है, जो डायग्राम है, उसको ऐसे ही देखो। अब ये जो 16 साल का कवारा लड़का है, दिख रहा है? उसको थोड़ा डेकोरेट करूँ क्या, मेकअप करूँ उसको? नहीं दिख रहा है। राइट। तो आपके एज ग्रुप का है, बेचारा है 16 इयर्स। अब ये 16 साल का कवारा लड़का है, तो वो बाजार में घूमने गया, तो उसको पूछे कि हु इज योर फादर? सो फ्रॉम द डाटा, हु इज द फादर? अब चार्ट को देखो तो अब बताओ कि उसके फादर कौन है? दिख रहा है कोई? No father. नो फादर। वेरी गुड। Their mother दिख रही, father नहीं। Mother is there but no father is there. Very good. So now mother is there but there is no father. I repeat my statement. Listen very carefully. यहाँ पे ध्यान दो। So पार्थिनोजेनेसिस से जो 16 साल का मेल बना है, नॉट 16 साल, 16 क्रोमोसोम वाला जो मेल बना है, उसके मदर है बट उसके फादर नहीं है। ओके, सो ये पार्थिनोजेनेसिस की यही स्पेशलिटी है। पार्थिनोजेनेसिस की क्या स्पेशलिटी है? मेल्स जो है, ओके, मेल्स जो बनते हैं उनके कोई फादर नहीं होते हैं, ये स्पेशलिटी है, ये ध्यान में। ओके, पार्थिनोजेनेसिस में फादर नहीं रहने के वजह से फीमेल इंडिविजुअल का जो ओवा डायरेक्टली मेल बना, फीमेल इंडिविजुअल का एग विदाउट फर्टिलाइजेशन जब ऑफस्प्रिंग को बनाता है, तो हम उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसीलिए पार्थिनोजेनेसिस को कहा जाता है वर्जिन बर्थ। अब आपको समझ में आया होगा वर्जिन बर्थ क्यों बोलते हैं। अब ज्यादा हिंदी में बोलना उचित नहीं रहेगा। यू अंडरस्टूड व्हाई इट इज कॉल्ड एज वर्जिन बर्थ? Yes, sir. राइट। सो ये अपना पार्थिनोजेनेसिस है, ये इसका फ्लो चार्ट है। तो मैं 2 पॉइंट्स में बोर्ड पे लिख देता हूँ, वो पॉइंट्स को आप ध्यान में रखो। आई होप सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज इज वेरी क्लियर। Yes, sir. Now can you say in honeybee sex is determined by chromosomes, or number of chromosomes, or both, or none? I repeat, honeybees में सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है? बाय क्रोमोसोम्स
R by number of chromosomes, R by both. Number of chromosomes. Number of chromosomes. Absolutely perfect. Now the 3 points I'm going to write. Now you write along with me. ये सभी को समझ में आया या कुछ इसमें है कंफ्यूजन? ओके, अभी देखेंगे ये इंपॉर्टेंट मार्गदर्शन मंडली क्या है, जिसको क्या याद रखना है. इन हनी बीज sex is determined by ploidy level. Ploidy level मतलब haploid या diploid, मतलब number of chromosomes. Okay, this is the first golden point. Second golden point is males do not have fathers. Males do not have fathers. Not fathers, sorry. Males do not have father. They can have sons. They can have sons. Okay. Sorry, they cannot have sons. They cannot have sons. But they have grandfather and grandson. This is a golden point about the parthenogenesis, that males do not have father, they can not have sons, but they can have, but they have grandfather and grandson. Okay, this is the very, very prominent point. Now, parthenogenesis in HB, in honeybees, is called अरेंटोकी. अरेंटोकी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें मेल बर्थ होता है, पार्थेनोजेनेसिस से मेल इंडिविजुअल ही बन रहा है ना, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं अरेंटोकी. अगर फीमेल इंडिविजुअल बनता है तो उसका सेपरेट नेम है टेलिटोकी कुछ है. आई एम नॉट क्लियर, आई विल फाइंड इट आउट एंड आई विल से यू. तो यहाँ पे हनी बीज में जो पार्थेनोजेनेसिस हो रहा है, पार्थेनोजेनेसिस के वजह से मेल बर्थ हो रहा है, इसीलिए उस टाइप के पार्थेनोजेनेसिस को अरेंटोकी कहा जाता है. Okay, so these are the 3 golden points which you have to remember, which are not included in our module. Concept is clear? Yes, sir. Exam syllabus is clear? Yes, sir. So we successfully completed the exam syllabus. We have still 2 days time. If you want any topic double explanation, I can explain you double 2 time, another time also. So you today or tomorrow, if you send, I will explain the topics once again. If not, I have to continue with the micro schedule. Okay, you go through all the topics of exam syllabus, and if you feel anything confused or any concept you feel missing, so you post me, I will explain you in the classroom. If not, means I have to continue with my micro schedule. Okay, so concept तो इतना ही है अपने जो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज में. और दूसरा एक है सेक्स डिटर्मिनेशन बाय, एक थियरी है जीनिक बैलेंस थियरी, सेक्स इंडेक्स. वो जो है आगे हम उसको पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट अपने मॉड्यूल में उसने बहुत शॉर्ट में दिया है, उसको पढ़े तो समझ में नहीं आता, मैं थोड़ा उसको डिटेल पढ़ाऊंगा. ओके, so this is for today. So if you have any doubts, now you can ask me. कुछ अगर डाउट्स है मन में तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं.